Am I audible? Everybody can hear my voice? Yes, sir. Okay, so we will wait for 2 minutes so the rest of the student could join and then we will start our class session. So just wait for 2 minutes and then we will start our class. Okay, so let us start the class. We have ended the class. Am I audible? Everybody can hear me? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so last day we have left the class with this drawing. Have you remembered this drawing? We are studying the Moses layout rules and we have discussed about this Moses layout rules and up to the what up to the contact rules we have done up to the contact rules and sorry, contact not, I think metal rules. Up to the metal rules we have done, that is R8 and R9, and I represent the different colors for different things. Like we have represent the black color for active areas, the polysilicons by blue, in that we have referred the p-type polysilicon with dark blue and n-type polysilicon with the light blue. Then we have discussed the metal contact, and in the metal contact we have used the magenta color to discuss the metal, and we have discussed the R5, R6, R7, R8 and R9, what are the minimum spacings, and hope everybody has clear about that concept. Anybody has any confusion? I am asking again, anybody has any confusion? हेलो, कोई कंफ्यूजन है किसी को? सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई कंफ्यूजन नहीं? अरे भाई, अगर कंफ्यूजन है तो बताओ.
हेलो, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है? No, sir. ओके, सो इसके बाद हम लोग जो करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आज। एक मिनट। Sorry for the disturbance. Yes, what we are talking about, we will discuss about the contact, and there are different types of contact, and over the metal and the polysilicon there are contacts. So let us today discuss about the contact, and I am representing the contact by using red color. Okay, so red color is our contact. This is my first contact. Next contact is here. Just a moment. Okay, so that is a contact. Two contacts are there. Two contacts are here. Okay, another contact is here. Here is another contact. So these reds are contact. Okay, and if I give the brass, I cover up the color. Okay, so these are the contacts we are using. This is R11. This is R12. This color is not in visible. Leave it by black. This is R11.
This is R12. This is R13. Okay. This is R17. This is R18. This is R16. This is R14. Sorry, not this, this. This is R14. This is R15. Sorry. This is R19. This is R20. And this is R12. Okay, so these are the R's. But what is the problem that I cannot define these R's in this? I have to delete these things. Okay, so I'm सर एग्जाम taking. में क्या ये पूरा ड्रॉ करने आएगा? एग्जाम में आएगा है जो डिस्क्राइब द मॉसिस लेआउट डिजाइन रूल्स बाय यूजिंग ए सुइटेबल डायग्राम। तो यहाँ पर जैसे ड्रॉ कर रहे हैं वैसे आपका लेआउट डायग्राम नहीं है। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोग ये जो मिनिमम मॉसिस लेआउट का रूल्स है इसको पता चले, इसीलिए एक सैंपल आप लोगों को लेआउट का ड्राइंग दिखाकर आपको ड्रॉ मतलब स्पेसिंग को इलेबोरेट कर रहे हैं। पर लेआउट डिजाइन जो होता है वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लेआउट डिजाइन रूल्स बता रहे हैं, लेआउट डिजाइन इसके बाद दिखाएंगे। मॉसिस लेआउट रूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों का ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी डिजाइन इंजीनियर जो भी डिजाइन करता है उसको मॉसिस लेआउट रूल्स से मतलब मॉसिस लेआउट रूल्स उसको पता होना चाहिए। जैसे कि ऑटो कैड में अगर आप किसी भी घर का एक डायमेंशन बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ सिंबल्स या कुछ
स्पेसिंग आपको एकदम होना चाहिए, मतलब लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। वैसे ही मोसिस लेआउट रूल्स आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए जब आप लेआउट डिजाइन रूल्स बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सैंपल है। ऐसा कभी भी प्रैक्टिकली में ऐसा कभी भी लेआउट डिजाइन नहीं होता, क्योंकि लेआउट डिजाइन अलग सा होता है। पर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि देखो ये हम लोगों का लेआउट डिजाइन का चैलेंज है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. So I am been writing all the contact rules now. So I am rubbing these things. Okay. I think this is enough for writing this. तो कॉन्टेक्ट रूल्स क्या है वो हम लोग लिखते हैं। R10 कहीं पर लिखा था? R10 नहीं लिखा था। दिस इज R10। So first is R10। R10 मतलब क्या है? R10 मतलब है पॉली कॉन्टैक्ट साइज।
जिसका वैल्यू होगा 2 लैम्डा। मतलब पॉलीसिलिकॉन में अगर कोई कांटेक्ट होना चाहिए, अगर कोई कांटेक्ट होगा तो उसका साइज होगा 2 लैम्डा। आप लोग देख सकते हैं कांटेक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, so all the length of the contact will be 2 lambda if it is in the polysilicon. So polysilicon में कोई भी कांटेक्ट हो तो उसका जो साइज होगा, मतलब इक्वल, इट इज a square, so every length will be of 2 lambda. That is the first point. Next is R of 11. What Zerji says? R11 says the minimum polycontact spacing is of 2 lambda. What it is telling that the minimum spacing in the polysilicon for the two contact will be of 2 lambda. That means the separation from one contact to another contact will be 2 lambda for polysilicon, means polysilicon contacts. Okay. Next is R of 12. R of 12 is the minimum polycontact to poly edge spacing. R of 12 is polycontact से poly edge तक जो spacing है उसका वैल्यू 1 लैम्डा होगा। मतलब जो कांटेक्ट आप पॉलीसिलिकॉन में बना रहा है उससे जो पॉलीसिलिकॉन का खत्म होने जाएगा, मतलब जो एज हो, तो वो कांटेक्ट से एज तक डिस्टेंस होगा मिनिमम 1 लैम्डा। So that is R of 12. So what is R of 12? R of 12 is the minimum polycontact to poly edge spacing. इसका वैल्यू होगा 1 लैम्डा। कितना होगा? 1 लैम्डा। फिर R13, फिर है अपना R13। R13 क्या है? मतलब ये तो देखिए, ये जो ब्लू कलर है ये पॉलीसिलिकॉन था, तो कांटेक्ट से पॉलीसिलिकॉन के एज का बिटवीन जो आपका क्या बोलते हैं, आपका स्पेस होगा, मिनिमम स्पेस होगा 1 लैम्डा। ये सबको पता चल गया। पर कांटेक्ट से मेटल, ये वाला मेटल है, तो कांटेक्ट से मतलब पॉलीसिलिकॉन कांटेक्ट टू मेटल एज स्पेसिंग, उसका भी वैल्यू होगा 1 लैम्डा। उसका भी वैल्यू होगा 1 लैम्डा। सो मिनिमम polycontact to metal edge spacing, that is 1 of lambda. Understand? भैया आप लोग समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। दूसरी जो है आपका मिनिमम पॉली कॉन्टैक्ट से एक्टिव का एज, देखिए मिनिमम पॉली कॉन्टैक्ट से एक्टिव का एज मतलब R of 14, क्योंकि ये जो काला है ये है एक्टिव का स्पेस,
तो पॉली का कॉन्टैक्ट से एक्टिव का स्पेस वो होगा कितना, वो भी दिया गया है। सो R14। एक्चुअली R14 का डायग्राम कुछ ठीक नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये एक्चुअली होगा क्या है, मिनिमम पॉली कॉन्टैक्ट टू एक्टिव एज स्पेसिस। ये होगा आपका 3 लैम्डा। इसका वैल्यू कितना होगा, 3 लैम्डा। हो गया। तो ये हो गया आपका पॉली से, मतलब पॉलीसिलिकॉन से जहां भी जाए कांटेक्ट का सब कुछ रूल्स। अब है अपना एक्टिव से। एक्टिव से भी कांटेक्ट है, देखिए मैंने एक्टिव से भी कांटेक्ट बनाया है। और दूसरा होगा मेटल से भी कांटेक्ट है, तो वो सब बताएंगे। सर इसमें से मेटल का लेंथ डिफाइन नहीं होता है? हाँ, मेटेलिक कांटेक्ट का सर लेंथ डिफाइन नहीं करते हैं क्या, मतलब नहीं मेटल सिर्फ? तो, मेटल सिर्फ जंक्शन के लिए बनाता है और कुछ नहीं। जहां जहां पे आपको, जैसे आपने स्टिक डायग्राम में किया था, जहां जहां पे आपने वो क्रॉस करने से पहले एक लाइन खींचते थे, जहां पर वो कनेक्शन होगा उसके लिए, तो वो बन गया आपका मेटल। और जो क्रॉस बन रहा है वो बन गया आपका कॉन्टैक्ट। यही है कॉन्सेप्ट। तो सर कांटेक्ट का कोई लेंथ नहीं होगा, सिर्फ विड्थ यहाँ पे डिफाइन करें हम लोग कहीं भी? जैसे मेटेलिक विड्थ 3 लैम्डा है बस, हाँ, लेकिन लेंथ डिफाइन नहीं करें हम लोग कि कितना लंबा होगा कितना नहीं होगा। नहीं नहीं, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो कुछ भी हो और सर सकता है। पॉलीसिलिकॉन का भी हम लोग लेंथ डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। पॉलीसिलिकॉन हम लोग का लेंथ डिफाइन होगा, एक्टिव एरिया का भी लेंथ डिफाइन होगा, विड्थ डिफाइन होगा। मेटल का नहीं सर जैसे वैसे पॉली पॉली कॉन्टैक्ट का जैसा आपका स्पेस, मतलब साइज डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वो एक आपका स्क्वायर साइज है। और आपका पॉलीसिलिकॉन का विड्थ डिफाइन होगा, उसका लेंथ कुछ डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, एक्टिव का आपका लेंथ डिफाइन ज्यादा नहीं होगा, उसका विड्थ ही डिफाइन होगा। और आपका मेटल का आपका दोनों चीज डिफाइन होगा। अच्छा, तो ये हो गया R14। अब आर बिना आपका, डिफाइन के फिर बना कैसे रहे तब, मतलब रैंडम? हाँ, अगर आपको लेंथ विड्थ दोनों नहीं। आपको दिखाएंगे। आपको अभी 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 कंफ्यूजन लगेगा थोड़ा। अब जब मैं एक आपका लेआउट बनाएंगे तब आपका डिफरेंस, मतलब आपका वो डेफिनेशन ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपका एक्टिव कांटेक्ट। अच्छा, एक्टिव कांटेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ R15 से। R15 में एक्टिव कांटेक्ट है अपना 15, R15 इज दिस। तो एक्टिव में मेरा कांटेक्ट का साइज कितना होगा, सो एक्टिव
contact size 2 lambda. R16 হচ্ছে মিনিমাম অ্যাক্টিভ কন্টাক্ট স্পেসিং। মিনিমাম एक्टिव कॉन्टैक्ट स्पेसिंग, ये भी 2 लैम्डा। ये कहाँ का है ना, ऑन द सेम एक्टिव रीजन, ऑन द सेम एक्टिव रीजन। नेक्स्ट टिप अपना R17। R17 क्या है अपना? R17 is minimum active contact to active. Minimum active contact to active. इसका स्पेसिंग होगा 1 लैम्डा। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। यह है अपना R18। R18 है मिनिमम एक्टिव कॉन्टैक्ट टू मेटल। oh sorry, minimum active contact मिनिमम एक्टिव कॉन्टैक्ट टू एक्टिव क्या उसके आगे R17 में 1 लैम्डा। एक्टिव एज स्पेसिंग ना होगा। हाँ, एज स्पेसिंग नहीं, एक्टिव से एक्टिव। हाँ, एज स्पेसिंग हो सकता है। मिनिमम एक्टिव कॉन्टैक्ट टू मेटल, ये स्पेसिंग ही होगा पक्का। सॉरी, इसका होगा आपको 1 लैम्डा। और जो आपका है R19, वो होगा आपका मिनिमम एक्टिव कॉन्टैक्ट टू पॉली स्पेसिंग, एज स्पेसिंग, एज स्पेसिंग। ये होगा आपका 3 लैम्डा। ये सब है एज स्पेसिंग। ओके, ये भी है एज।
लास्ट है आपका 820। है आपका मिनिमम एक्टिव contact spacing on different active regions. That is 6 lambda. मतलब दो डिफरेंट एक्टिव रीजन है, यहाँ का एक एक्टिव रीजन और यहाँ का एक एक्टिव रीजन, दोनों में स्पेसिंग होगा 6 लैम्डा। Understand everybody? भैया सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कॉपी में आप लोगों को अगर एग्जाम में टाइम पे आए कि डिफाइन द मॉसिस लेआउट रूल्स, define the Moses layout rules or explain the Moses layout rules by giving suitable illustration or suitable example, तो आपको ऐसा एक ड्राइंग बनाना है जैसे मैंने पहले दिन बनाया था, और ये टोटल बनाना है। अब तो मैंने रब कर कर ये लिखा, पर जब आप लिखेंगे तो पूरा लिखना है। मैंने एक आपको एक रेड कलर की इमेज फाइल भेजा था, आप लोग देखेंगे वो टीचबिन में अपलोड हुआ है। और ये भी जो दोनों में टेंट का इमेज भेजा हो, वो भी दोनों देखकर आप समझ सकते हैं कि वैसे ही आपको बनाना है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इसको आता है 7-8 नंबर आता है, सो इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सर सिर्फ R20 ही हुआ कि उससे भी ज्यादा हो सकता है? उससे भी ज्यादा हो सकता है, बहुत सारा है, पर ये क्या बोलते हैं इसको, आप लोग बोलते हैं ना जो इस डायग्राम के लिए ये स्टिक डायग्राम नहीं है, ये लेआउट डायग्राम। स्टिक डायग्राम मतलब का सर कोई इस डायग्राम के लिए और दिस डायग्राम समझ नहीं पा रहे, और अगर बताइए। सर मतलब ऐसा लगा कि बहुत सारे डिस्टेंसेस नहीं दिए गए हैं, मतलब नहीं, हम बोल सकते हैं आपको जो जितना भी इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन था, आप अगर ओके सर। बताएंगे कि इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन जितना भी था वो मैंने दिया है इस पे। इससे भी ज्यादा आप लोग बुक में डिस्क्रिप्शन मिलता है, पर अगर आप उसको बाय पर्टिकुलर एक, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ एक फिगर में सब का जो रूल्स है वो अगर अच्छी तरह आप दिखाना चाहते हैं तो यही सबसे सिंपल तरीका है। जैसे सर अगर हम 5 to 10 अगर R टर्म्स दे दें तो नहीं हो पाएगा कि मुझे 20 ही देने होंगे? नहीं, 20 तो आपका मिनिमम है, 5-8 देने से तो कोई फायदा नहीं है ना। ये ओके आपका सर। मिनिमम, और इम्पोर्टेंट इसका मतलब जो जो इम्पोर्टेंट था उसका हम लोग निकाला है। इससे भी ज्यादा और भी कुछ है,
पर वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वो आप अगर एक फिगर में दिखाना चाहता है तो वो संभव नहीं है आपके पास। तो जो संभव है, जो आप लोग एक फिगर में अच्छी तरह आप लोग मार्क करके दे सकते हैं, उसी को हमने यहाँ पर दिया है। ओके ओके सर। Okay, so hope you have observed this. So this is the Moses design rules. Now we will go for the micron rules. There is another rules. I told you there are two types of rules. One is called Moses design rules. Another is called micron rules. So micron rules is different, and उसका वैल्यू माइक्रोन में आता है। और लैम्डा डिजाइन रूल्स या मॉसिस लेआउट रूल्स जो हम लोग दिखाते हैं, वो आपका आपने दिखाया आपको, तो उसमें आपका एक लैम्डा मतलब आपका हो जाता है क्या बोलते हैं 0.18 माइक्रोन। ठीक है, so let me show you one slide. So this is lambda based design rules that we have discussed. Lambda based design is a half of technology science since 1985. As technology changes with smaller dimension, a simple change in the value of lambda can be used to produce a new mask set. Okay, all devices mask dimension are based on the multiple of lambda. Example, polysilicon minimum width is 2 lambda. Minimum metal to metal spacing is 3 lambda, that we have already discussed. So ऐसा ही होता है। Due to the photo resolution, concentration, temperature, and reaction of time to the chemical reagents, the layout should be tolerate some errors caused by process environment. In order to avoid the influences from process variation, the layout of the circuit schematics should follow the design rules. तो इसीलिए ये दो रूल्स हम लोगों का आया है। एक है स्केलेबल डिजाइन रूल्स, जिसका हम लोग बोलते हैं लैम्डा पैरामीटर, और दूसरा है एब्सोल्यूट डायमेंशन, मतलब एकदम जो डायमेंशन होना चाहिए उसको देखने के लिए, उसको हम लोग माइक्रो रूल्स बोलते हैं। तो क्यों डिजाइन रूल्स हमने किया है? इंटरफेस बिटवीन डिजाइन एंड प्रोसेस इंजीनियर, गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस मार्क्स। Layout rules are used for preparing the marks for fabrication. Fabrication process have inherent limitation in accuracy. Design rules specify geometry of mask to be optimized yield and reliability. There are three major rules wherewith minimum dimension associated to a given feature: wear separation, allowable separation, contact overlap rules. तो आप लोग देखे हैं, विद होता है एक स्पेसिंग होता है, हमने स्पेसिंग के बारे में पूछा था, मैं बोला था यहाँ पर, और एक कांटेक्ट होता है। तो डिजाइन रूल्स दो मेजर अप्रोचेस है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ।
Micro rules stated at micron resolution, and lambda rules simplified micron rules with limited scaling attributes. तो जो पूछ रहा था सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं लैम्डा रूल्स यूज करता हूँ, इसीलिए मैं बोला कि आप लोग जो 20 आप लोग जो आप पहले जो बोल रहे थे कि सिर्फ इतना इससे ज्यादा नहीं होता है, पर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लैम्डा रूल्स यूज करता हूँ. Lambda may be viewed as the size of the minimum feature. Design rules represent a tolerance which ensures very high probability of correct fabrication, not a hard boundary between correct and incorrect fabrication. So design rules are determined by experience. देखो यहाँ पर मिनिमम विथ ऑफ द लाइन और लेयर, जैसे कि पॉली का मिनिमम विथ 0.5 माइक्रोमीटर है. मिनिमम स्पेस मतलब इन दोनों में जो स्पेस है उसका, ठीक है, जैसे एस पॉली और पॉली के बीच में जो मिनिमम विथ है, ये एन टाइप मॉस हो सकता है, ये पी टाइप मॉस हो सकता है, तो इनमें बीच में जो स्पेसिंग है उसका मिनिमम स्पेस भी दिया जाता है. मिनिमम एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गेट है, इसके ऊपर पॉलीसिलिकॉन दिया है, तो ये कितना देर तक चलेगा, तो ये जो देर तक मतलब गेट जहाँ से खत्म होता है और पॉलीसिलिकॉन जहाँ है उसका मिनिमम एक्सटेंशन वैल्यू भी दिया जाता है. एक है ओवरलैप, दो लेयर में अगर ओवरलैप होता है तो ये लेयर और ये लेयर के बीच का जो ओवरलैप अंतर है उसका भी वैल्यू दिया जाता है. और टोटल एरिया, जैसे कि कॉन्टैक्ट हम लोग यूज किए थे, तो कॉन्टैक्ट का डायमेंशन चारों दो दिशा कितना होगा उसका एरिया भी होता है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्पेसिफिक रीजन. ये कन्वेंशनल कलर यूज करते हैं. अगर कलर यूज करेंगे तो हम लोग कलर यूज करते हैं वेल के लिए पी और एन के लिए ऐसे, एक्टिव एरिया के लिए ग्रीन, सिलेक्ट एरिया के लिए ऐसा, पॉलीसिलिकॉन रेड होता है, मेटल ब्लू होता है, मेटल टू मैग्नेटा होता है, कॉन्टैक्ट पॉली टू पॉली ब्लैक होता है, कॉन्टैक्ट सब कुछ ही ब्लैक होता है. तो इससे वो मैंने बोला ना, जैसे कि ब्लूप्रिंट से अगर डिजाइन इंजीनियर्स को पता चल जाता है सब कुछ, वैसे ही ये कलर देखकर सबको पता चल जाता है कौन सा किया है. मतलब रेड कलर होगा तो पॉलीसिलिकॉन होगा ही, ठीक है, ब्लू कलर होगा तो मेटल 1 होगा, मैजेंटा कलर होगा तो मेटल 2 होगा. अगर किसी लेआउट में स्लाइड. हाँ बोलो. सर स्लाइड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट वाला ही दिख रहा है. अच्छा, अब दिख रहा है, चेंज हो रहा यस है. सर. Yes, यस sir. सर. हाँ, तो मैंने क्या बोला, कन्वेंशन जो लेयर है उसका बात बोला है मैंने. तो ये कलर देखकर आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा कि पॉलीसिलिकॉन है तो रेड कलर होगा, जो जहां पर मेरी रेड कलर दिखे वो मेरा पॉलीसिलिकॉन है, जहां पर मेरा फर्स्ट मेटल ब्लू कलर दिखे वो मेटल 1 है. किसी किसी लेआउट डिजाइन रूल्स में आपको मतलब मेटल 2 भी नहीं देखे. हाँ, गौरव कुमार आप है क्लास में? यस सर. अब आपको दिखाई दे रहा है? सर अभी कुछ देर से दिख रहा है सर. अच्छा, तो मैं जो बोल रहा था ये कॉन्वेक्शनल रूल्स है. मतलब ये नहीं कि आप जब लेआउट डिजाइन करें तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिजाइन इंजीनियर नहीं है, आप हैं क्या,
आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इसको जान रहे हैं, सो यू आर ए स्टूडेंट और यू आर ए व्हाट रिसर्च पर्सन। तो इसके लिए हमको कन्वेंशनल रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि रेड जहाँ पर ही होगा वहां पर मुझे पॉलीसिलिकॉन के लिए रेड यूज करना पड़ेगा, नहीं। पर जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, अगर एक डिजाइन इंजीनियर्स, अगर आप डिजाइन इंजीनियर्स की बदौलत किसी जगह पे काम किया, जैसे कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, जैसा सिनोप्सिस है, जैसे कि इंटेल है, जैसा कि वेस्टर्न डिजिटल है, और जितना भी जहाँ पर फैब्रिकेशन होता है, तो वहाँ पर आप लोग अगर एज ए डिजाइन इंजीनियर काम किए तो आपको ये रूल्स एकदम मान्य ही पड़ेगा। और इसीलिए जो लेआउट डिजाइन सॉफ्टवेयर मिलता है जहाँ पर हम लोग डिजाइन रूल चेक करते हैं, मैंने आपको बोला था कि आपके पास स्कैनर स्पाइस होगा पर आप लोग वहाँ पर लेआउट डिजाइन को चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चेक करने के लिए जो बैकएंड में सॉफ्टवेयर रहता है या बैकएंड में जो क्या बोलते हैं प्रोफाइल रहता है, बाय एल्गोरिदम रहता है, जहाँ पर ये सब कन्वेंशनल डेफिनेशन दिया गया है, उसको आपको खरीदने के लिए लाइसेंस वर्सन चाहते हैं। तो वो बहुत ही दाम है, क्योंकि these are all industry related software. You can see all things we are talking about are industry. VLSI टेक्नोलॉजी का 90% काम अभी इंडस्ट्री में हो रहा है। रिसर्च पर्सन इसको ज्यादातर यूज नहीं करते, क्योंकि इसको सेटअप करने के लिए, मैंने पहले से आपको बताया था, इसको सेटअप करने के लिए आपको इतना खर्चा लगता है कि एज ए रिसर्च पर्सन और एज ए स्टूडेंट यू कैन नॉट स्टडी दिस थिंग्स। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था फैब्रिकेशन का, याद है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे जितना आप लोग जान सके तो जान सकते हैं। तो ये है एससीमोस डिजाइन रूल्स। एससीमोस डिजाइन रूल्स कौन सा होता है? जो इंट्रा लेयर डिजाइन रूल्स होता है। मतलब एक वेल के अंदर अगर पी वेल है तो पी वेल के अंदर जो स्पेसिंग होता है उसको लिए हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग इंट्रा लेयर डिजाइन रूल्स की बात करते हैं। तो इसको हम लोग जहां पर एक्सप्लेन करते हैं वहां पर बोलते हैं एससीमोस डिजाइन रूल्स। ठीक है, एससीमोस डिजाइन रूल्स आपका उतना ज्यादा नहीं है। ये है मॉसिस डिजाइन रूल्स। यहाँ पर देखिए सिर्फ R1, R3, R4, R5, R8, R9, R10, R11 दिया गया है, ज्यादा नहीं दिया गया है। आप लोग इस वेबसाइट से पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखिए www.mosis.org। यहाँ पर मोसिस डिजाइन रोल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो स्लाइड में दिखाया है, हाँ, तो इसके मतलब शेयर नहीं हो रहा है। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का? टीचमेंट में आई थिंक कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जूम में इंटरनेट भी जूम कंजप्शन में जूम में प्रॉब्लम आप लोगों का ये होता है कि 40 मिनट्स का क्लास होता है। अब 40 मिनट्स के बाद फिर से आप लोगों को बोलना पड़ता है कि ज्वाइन करो, ज्वाइन मत करो। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि आप लोग तो बहुत महानुभव स्टूडेंट हो, तो जब वो सेकेंड क्लास के लिए आप लोगों को ज्वाइन करने के बोलता हूँ तो आपका 60% स्टूडेंट वहां से भाग जाता है। और इसमें अगर आप क्या बोलते हैं ये आपका टीचमेंट में अगर भाग भी जाए तो वहां पर लिखा हो जाता है कि कौन कितने मिनट के लिए प्रेजेंट था। क्या करें आप लोगों से? मैंने क्लास में बोला था ना आप लोगों को कि हम लोग पढ़ाते कम है, चोर पुलिस ज्यादा खेलते हैं आप लोगों के साथ। आप कब निकलेंगे, आप कब कुछ करेंगे, हम लोग उसको पकड़ेंगे। तो ऐसा सब पढ़ाने नहीं होता। अगर बाहर फार जाओगे, बेंगलोर फंगलोर जाओगे या चेन्नई फन्नई जाओगे, तो वहाँ पर सर और टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये रिलेशन नहीं होता। वो लोग पढ़ता है, अगर नहीं पढ़ता है तो नहीं आता है, अगर पढ़ता है तो पढ़ता है और कंसंट्रेशन से पढ़ता है। पर आप लोग क्या करते हैं,
5-6 जन 10 जन पढ़ते हैं, बाद बाकी चोर पुलिस खेलता है, तो इसीलिए टीचिंग में मुझे पढ़ना पड़ रहा है. So this is the CMOS design rules, and now we can see the slide. It is changing. Yes, sir. Okay, so this is MOSIS design rules, and you will get the details of MOSIS design rules in www.mosis.org. यहाँ पर आपको डिटेल्स रूल मिलेगा. 3 बेसिक डिजाइन रूल्स है, एक है वायर विथ है, एक है सेपरेशन है, और एक कॉन्टैक्ट रूल है. आप लोग को इसके बारे में पूरा डिटेल्स हमने बता दिया. इसके बाद आता है लेआउट वेरिफिकेशन. तो उसमें हम लोग करेंगे डिजाइन रूल चेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इलेक्ट्रिकल रूल चेक हम लोग नहीं करते, लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक ये करते हैं कि लेआउट को डिजाइन रूल चेक में भेजते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कि हमारा जो डिजाइन रूल्स है, जो नियम है कन्वेंशनल रूल्स, वो ठीक है कि नहीं. अगर ठीक हो जाता है तो उसको पास हो जाता है. पास होने के बाद उससे जो इसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, मैंने उस दिन जो स्कीमेटिक डायग्राम आप लोगों के सामने ड्रॉ किया था, एक रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर की VTC कार, याद है आप लोगों को? यस सर. तो वो जो सर्किट डायग्राम वो लेआउट से डायरेक्ट चला आता है. सर हम लोग का एक क्लास है सर, कितने बजे से क्लास है? 12 बजे से. अच्छा ठीक है. सो दैट इज DRC. ERC क्या है, सब इसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए. ये भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? तो इससे आप लोगों को जानकारी हो जाएगा. तो ये मेरा आपका डिजाइन रूल्स थे, और रेओ सीमोस लेआउट का रूल्स. तो ये स्लाइड भी आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना. तो लेआउट डिजाइन रूल्स हमारा खत्म होता है. नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटली लेआउट डिजाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग एनमोस डिजिटल सर्किट में चले जाएंगे. सीमोस डिजिटल सर्किट, pseudo एनमोस, एनमोस, सीमोस. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू.